والد کا نام؟ وجاہت علی خان. کہاں رہتے ہو؟ نارتھ آباد بلاک کیس میں. اے 242 مقام نمبر. نمبر کیا بتایا آپ نے؟ اے 242 بلاک کیس. قوم کیا ہے؟ ہندوستانی. یوسف خان، یوسف بھائی پٹھان. ہندوستان سے یوسف بھائی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور کہاں آپ نے پیدائش کہاں پر ہوئی آپ کی؟ پیدائش میری کراچی کی ہے. پیدائش کراچی کی ہے. اسی ایڈریس پہ ہوئی تھی؟ نہیں، میں ملیے میں تھے جب والد صاحب. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب ملٹری کے ریٹائرڈ کلر تھے. ملٹری یونیفارم کے اندر سینئر کلر کو ریٹائر ہوئے. ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی آپ؟ ابتدائی تعلیم پھر ہم لوگ ناظم آباد آ گئے تھے. والد صاحب ناظم آباد آ گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ دوسری تعلیم کلاس تک میں نے پیکسلیل میں پڑھا ناظم آباد. اور پھر ہم لوگ نارتھ آباد آ گئے. میں نے وہاں ٹی بلاک میں اسکول ہے پاکستان سیکنڈری اسکول، وہاں سے تک میٹرک کیا. پھر وہیں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر کالج میں شپارہ کالج کے اندر میں نے داخلہ لیا تھا پری میڈیکل کے اندر. میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا، تو میرا زیادہ دھیان کھیل کی طرف تھا تو میں پری میڈیکل نہیں پڑھ پایا. پھر میں نے مولانا عبدالحمید زینی کالج ہے اورنگی ٹاؤن میں بنارس کے قریب، اس سے میں نے آئی کام میں داخلہ لیا تھا. آئی کام کیا اور پھر وہیں سے میں نے بی کام کیا تھا. کب سے آپ نے اپنی اس کے تعلیم کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر کون کون سی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ تعلیم کے علاوہ میں کرکٹ کھیلی تھی، ٹیبل ٹینس کھیلی تھی، اور اے پی ایم ایس میں نے جوائن کی تھی کالج میں. اور جس کا اے پی ایم ایس ہو ایم کے ایم کی طلبہ تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اس میں کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر مطلب یہ تھا کہ جب نیو کور دیا، نئے ایڈمیشن والے آتے تھے تو ہم لوگ اسٹال وغیرہ لگاتے تھے ویلکم کا اور گائیڈ کرتے تھے ان کو، اور میٹنگ وغیرہ ارینج کرنا ہوتا تھا. کبھی پوسٹر وغیرہ کالج کے اندر بھی آیا، یہ سب ارینجمنٹ اے پی ایم ایس ہوا تھا. میں اس میں کام کرتا تھا. اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے کام وغیرہ کرتے تھے؟ جی. آپ کس کے کہنے پہ اے پی ایم ایس میں آئے تھے؟ اے پی ایم ایس جب میں آیا تھا وہاں پر تو لڑکوں کو دیکھا کہ اے پی ایم ایس کو کام کر رہے ہیں، تو ارشد شاہ یونٹ انچارج تھا وہاں کا. ارشد شاہ جو آج کل اے پی ایم ایس کا مرکزی رہنما ہے، اس کے کہنے پر جو ہے ہم لوگوں نے ملے سے بیٹھے تو اے پی ایم ایس میں جوائن کی. پھر نعرے لگانا، جھنڈے وغیرہ، جلوسوں میں جانا، تو یہ میرے پہلے اسٹیپ تھے ایم کے ایم کے اندر جو میں نے کام کیے. اچھا، اس کے بعد پھر ہلکے ہلکے یہ ہوا کہ اسٹرائکوں کا زمانہ آنا شروع ہو گیا کہ ایم کے ایم کے مختلف حکومتوں سے جو ہے پارٹی حکومتوں سے اختلافات اور ایم کے ایم اسٹرائک والے کال کرنا شروع کر دی. الطاف گروپ نے الطاف حسین نے مختلف کال کرنا. الطاف حسین پاکستان میں تھا تو اسی طرح ایک اسٹرائک تھی 93 میں. اس کے اندر میں نے اور میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے، جس میں ایک لڑکا خلیل آباد کا رہا. خلیل آباد کا نئی ایس بلاک میں رہتا ہوں، اس کے اوپر پہاڑ کی پٹی ہے، پہاڑی پٹی ہے وہ خلیل آباد کراتی ہے. اچھا، تو وہاں پہ رضا، لئی، میں، کامران گاندھی، عدیل، مجاہد، مختلف لڑکے تھے جو سارے ہمارے عمر کے تھے. تو ہم لوگوں نے نیچے B3 بس جلائی تھی، منی بس جو چلتی ہے B3 وہ ہم لوگوں نے جلائی تھی. یہ میرا پہلا کام تھا. تو کسی حوالے سے غیر قانونی کام جو کہہ سکتے ہیں. کیوں جلائی تھی؟ پرائی پراپرٹی حکومت پاکستان کی دولت تھی، وہ کسی کی کمائی تھی، لاکھوں روپے کی بنتی ہے منی بس، اس کو اتنی آسانی سے کیوں جلا دیا آپ نے؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ مطلب یہ سمجھتا شعور نہیں تھا. ہمیں نہیں لگا کہ اسٹرائک ہوئی ایم کے ایم کی اور اسٹرائک ہوئی تو آپ چیزیں بند رہنی چاہیے. تو زبردستی مطلب یہ ہوتی ہے اسٹرائک لوگ رضاکارانہ کرتے ہیں. ایم کے ایم کی اسٹرائک ہم لوگوں نے جب بھی کامیاب کرائی ہیں ڈرا کے دھمکا کے اور تشدد کر کے اور جلاؤ گھراؤ کی کارروائیاں کر کے مطلب جو ہے ہڑتالیں کامیاب ہوئی ہیں. الطاف گروپ کی جو بھی کالیں ہوئی ہیں، الطاف خان نے جو بھی کالیں کی ہیں ہڑتال کی، اس طریقے سے کامیاب ہوئی ہیں کہ ایک منی بس جل گئی اور باقی سب منی بس والنٹر کے ہماری منی بس نہیں نکالی. تو اس طرح سے ہماری نہیں تو یہ کس کے کہنے پہ؟ آپ کو کون کہتا تھا کہ ایسا کرو؟ آپ تو نوجوان تھے. یہ یونین انچارج تھا ہمارا ناصر بھائی.
नासिर बेग हुक्म देता था। जी, नासिर बेग के कहने पे जो अल्ताफ हुसैन ने यूनियन इंचार्ज बनाया था, सारी यूनियन इंचार्ज था, मैं खुद ही अनाउंस करता था। तो नासिर बेग के कहने पे उन्होंने किया था कि बोला था कि औरतों को बस वगैरह तो नहीं जल रही है, अगर चल रही हैं तो जला दो। तमाम मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी थी। और आगे फिर उसके बाद फिर 94 आया, तो उसमें MQM ने एक मुजाहरा किया था मिट्टी के पुल के पास, मस्जिद शोदा मस्जिद पे MQM ने मुजाहरा किया था। उस मुजाहरे के बाद अल्ताफ हुसैन ने अपने घर पे एक तकरीर रखी थी। उस तकरीर के अंदर उसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे। तोड़ दो पाकिस्तान के नारे पहले दफा उस तकरीर के अंदर लगे थे, और पुलिस के खिलाफ नारे लगे, रेंजर्स के खिलाफ नारे लगे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगे। तो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर की, लड़कों को खूब मतलब इश्तियाल दिलाया हुकूमत और आर्मी के खिलाफ, और 2 दिन की स्ट्राइक कॉल कर दी अल्ताफ हुसैन ने कि 2 दिन की हड़ताल है कराची के अंदर। उस हड़ताल के अंदर एक उन्होंने फिर जब आए वापस, तो जो मुझे याद पड़ता है वो 1 मई थी, 94 की 1 मई थी, जब स्ट्राइक की कॉल हुई थी। तो हम लोगों ने पहले नहीं बस जलाई, फिर रात का टाइम था। सेक्टर इंचार्ज हमारा उस जाने में नईम आ गया था, नईम फायर ब्रिगेड वाला, और मसूद एक सेक्टर मेंबर था, N ब्लॉक में रहता था। सलीम बलोच जो है सेक्टर इंचार्ज था, और तमाम टेररिज्म के और टेररिस्ट काम जितने भी हैं सलीम बलोच देखता था। तो इन्होंने मैं तैयार वाले दिए, तो फहीम कमांडो से मेरी मुलाकात तो पहले से थी, लेकिन इस हवाले से फहीम कमांडो के साथ पहले से बैठा। तो हम लोग M ब्लॉक के अंदर 3 में यूनिट 173 के अंदर बैठे हुए थे। रात का टाइम था, मेरे पास पिस्तौल थी, फहीम कमांडो के पास क्लाशनकोफ थी, वहाँ पे लड़का अनवर था, सुहेल बंगाली था, और फहीम का भाई मुजम्मिल था, और लड़के थे थोड़े से। तो रात के वक्त एक आर्मी की गाड़ी पे फहीम कमांडो वाला जिस तरफ बैठे थे, हम लोग फ्लैटों के एक कोने में हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, एक तरफ फहीम कमांडो वाला कक्ष लेके खड़े थे। इन्होंने आर्मी की गाड़ी पे फायरिंग की। एक मिनट, ये असला किसने दिया? आपने खुद खरीदा, घर वालों का असला था, या अपना आपका जाती असला था? क्योंकि SMG जो जाती होती नहीं है। हाँ, ये अल्ताफ हुसैन का घर जो है 90 कहलाता है। तो जो अल्ताफ हुसैन का घर 90 कहलाता है, वहाँ से हथियार बढ़ते थे, जो मुख्तलिफ जिम्मेदार जुल्फ़िकार नजर वाला हुए, और जो जमाने में अनीस अहमद खानी था, अनीस अहमद एडवोकेट था, इन लोगों ने सेक्टर इंचार्ज वालों को हथियार देते, जो सेक्टर इंचार्जेस उनके यूनिट में और यूनिट से भी लड़कों को मिलते थे। आपको किसने दिया था? मुझको पिस्तौल सलीम बलोच ने दी थी, जो हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज था। और SMG उसको किसने दी थी? फहीम कमांडो को SMG भी नॉर्थ सेक्टर ने दी होगी, नईम ने, या फिर सलीम बलोच ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस असले से क्या किया आपने? इन लोगों ने फहीम कमांडो और इनके साथ वहाँ पर सुलेमान वाली वाले थे, इन्होंने आर्मी की गाड़ी में फायरिंग की थी, एक लांस था, एक हलाक हुआ था, और उनकी रिटर्न काउंटर से जो है फहीम का भाई मुजम्मिल मारा गया था। उसमें आर्मी वाले वो थे कि अलग? जी, एक आर्मी का लाश था, ये हुआ था। जब हम लोग वहाँ भाग के पहुंचे तो आर्मी की गाड़ी जा चुकी थी, तो वहाँ मुजम्मिल की लाश पड़ी थी, उससे कुछ फासले पे एक आर्मी वाली की लाश पड़ी हुई थी। जब हम लोग यहाँ पे पहुंचा भी हुआ था। फहीम एक भाई था, बड़ा भाई मुजम्मिल। इस कारनामे की इत्तला किसको दिया आपने? तो उस जाने हमारा क्लेवर का नहीं था, फहीम कमांडो ने नहीं को बताया था कि हम लोगों ने ऐसा हो गया, मेरा भाई मारा गया, और एक हमने आर्मी का बंदा ऐसा मारा है, फौरन तौर पर आर्मी का बंदा मार दिया है। उसके बाद हम लोग आर्मी का बंदा मारा था, फहीम का भाई मारा गया था, टेंशन थोड़ी कमांडो का बाप उस आर्मी में था नहीं? चले आगे बढ़े। इसके बाद तो फिर स्ट्राइक थी, छापे वगैरह का हुआ कि आर्मी का एक बंदा लांस नाइक बड़ा मजार होता है, तो अल्ताफ हुसैन की काल की भी स्ट्राइक के अंदर मारा गया था। हम लोग इलाके से भाग गए थे, अपने करीबी दोस्तों के यहाँ जाके खुश हो गए थे, फिर अपने घरों से हट गए थे। तो कोई अपने किसी दोस्त के यहाँ जाके एक दिन के लिए रह गया, कोई किसी दिन क्या रह गया। फिर इसके बाद जो मेरा जो मैंने खुद इंफरादी तौर पर जो कत्ल किया था पहला, वो सब इंस्पेक्टर वाजिद शाह का था, नुसरत भुट्टो के अंदर तैमूरिया में सब इंस्पेक्टर थे। इनको कत्ल किया था हमने। सलीम बलोच वाला ने इसका टेस्ट निकाल के लाके दिया था कि हमको फला जगह पर रहता है, फला जगह पे वो खड़ा हुआ था, और आप लोग जाओ। गाड़ी सलीम बलोच ने दी थी तकी सेंटर के पास मुझको और ज़ियाउल्लाह को। नहीं, वो वाजिद शाह ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वाजिद शाह ने किसी का या तुम्हारा या उन लोगों का क्या बिगाड़ा? कोई नहीं, मतलब इलाके में उसकी वाजिद साहब की जो है मतलब बहुत अच्छी रिपोर्टेशन थी भुट्टो कॉलोनी के अंदर। लेकिन चूंकि हमसे हमारे जो ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज, तो हम लोग हल्फ उठा के इतने मजबूर होते हैं कि हल्फ उठा के प्रामी पर हाथ रखे, हल्फ उठा के ज़्यादारी नहीं करेंगे, जो ये कहेगा वो करेंगे। तो हम लोग मजबूर थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाके फायरिंग की थी। तो ये पहला था जो मैंने किया। नहीं, उसको मारने का जो है क्या फायदा पहुंच रहा था आपको उसके मारने का? ये तो हम लोग तो छोटे लेवल के थे, ये सेक्टर इंचार्ज नहीं जानता होगा, बलोच जानता होगा, सलीम बलोच। उनके कहने पे मारा या उनके कहने पे मारा था।
انہوں نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ سب انسپیکٹر واجد شاہ کھڑا ہوا، آپ کو جا کے مارو۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو کس نے کہا ہے؟ ان لوگوں کو جتنی بھی ہدایتیں ملتی تھیں وہ ڈائریکٹ زمانے میں الطاف حسین سے نیم کی بات ہوتی تھی، یا پھر الطاف حسین کے نمائندے جو نائزر پہ بیٹھے ہوئے تھے جس میں ذوالفقار حیدر، انیس قائم خانی، یہ لوگ نیم کو اور سلیم بلوچ کو اجازت دیتے تھے الطاف حسین کے کہنے میں۔ اس کے بعد اور کون سی بحالات ہیں یہ کیا کیا؟ نہیں جب ہم لوگوں نے ایک حقیقی کا یونین انچارج تھا جو کیو بلاک میں رہتا تھا، اکبر نام تھا اس کا، میں سلیم بلوچ اور آصف افضل گئے تھے، تو ہم نے فائرنگ کر کے اس کو کیو بلاک میں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ اکبر لڑکا تھا اور حقیقی کا یونین انچارج تھے۔ کیوں اس نے حقیقی والے نے آپ نے کیا بگاڑا تھا؟ حقیقی کا تھا یہ، اور اس کو خود مارا ایم ہے؟ کے ایم کے اندر اختلاف کی مطلب سیاست نہیں ہے، وہ یہ چاہتی تھی کہ مطلب جو آپ کے خلاف آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے مار دو اس کو۔ یہی ہم لوگوں کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ مطلب ذہنی طور پر کہ جو آپ کے خلاف آ رہا ہے یا آپ کی قوم سے غداری کر رہا ہے اس کو مار دو، کیونکہ ایک نعرہ ایم کے ایم کا بڑا مشہور ابھی تک چلتا ہے اور اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں سب کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ یہ نعرہ بالکل سب کے ذہنوں کے اندر بہت اچھی طریقے سے بٹھا دی کہ اس کو پورا کرنا ہے کہ، اور نعوذ باللہ الطاف حسین کا کردار جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی کے برابر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ نعوذ باللہ۔ آگے اس کے بعد پھر اسی طرح ایک بقرعید آئی تو ہم کو کھالے جمع کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ایک تیموریہ کی موبائل آئی ہے جہاں پہ کھالے جمع کر رہی ہے، اس طرح تو ہم لوگ دور سے ملک ڈرانے کے لیے اس کو فائرنگ کی، جس سے موبائل واپس نکل گئی تھی۔ اس کے اندر میں تھا، سلمان حیدر تھا، آصف اور کامران، ہم 4 لڑکے اس کے اندر تھے جس پہ موبائل بھاگ گئی تھی۔ پھر ہمارے محلے میں ایک ڈکیتی پڑی کچھ عرصے بعد، تو اس میں پتہ چلا کہ سب انسپیکٹر جو کہ ایس ایچ او بھی تھے وہاں کے تیموریہ کے، محمد شاہ ہیں، محمد شاہ سے شاہ محمد، تو ان کے بارے میں تھا کہ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ جو ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ بہت خطرناک آدمی آئے تھے، بہت ہوشیار نہیں ضرورت ہے، جہاں اس کا موقع ملے اس کو ہلاک کر دو۔ تو ہمارے میں ڈکیتی پڑی، وہاں پر ایک 2 پھول والا کوئی آدمی آیا، تو فہیم کوانڈو ایس بلاک میں تھا، فہیم کوانڈو تھا، عامر چڈی اس کے ساتھ تھا اور ذیشان۔ فہیم کوانڈو اور ذیشان ایک پولیس مقابلے میں دونوں اکٹھے مارے گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس موبائل کو جو کہ گلی بیچ ایس بلاک کے بیچ والی گلی سے اتر رہی تھی، تو اسپیڈ بریکر کے پاس انہوں نے ہاتھ لگا کے اس کے بعد فائرنگ کی، جس سے ایک سب انسپیکٹر اور 4 کانسٹیبل یا 3 کانسٹیبل ہلاک ہو گئے تھے۔ تو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ وہ سب انسپیکٹر شاہ محمد نہیں ہلاک ہوا تھا، بلکہ کوئی ابرار شاہ تھا ایڈیشنل ایس ایچ او، وہ ہلاک ہوئے تھے۔ راجہ ابرار، چودھری ابرار۔ اچھا، یہ ان کو جو ہے اس کی ہلاکت میں آپ شامل نہیں تھے؟ ان کی ہلاکت میں شامل نہیں تھا۔ اچھا جی، کس کے حکم پر انہوں نے کیا؟ یہ فہیم کوانڈو جو خود موجود تھا، اور فہیم کوانڈو خود اپنے سارے معاملات لکھتا تھا، اس کو میں تھا اس کو ضرور یقیناً ایک آواز پر ضرور ملتا اور ہے۔ فہیم کوانڈو پولیس کا بہت بڑا اور آرمی کا بہت بڑا دشمن ادھر سے بن گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی ہلاکت کا ذمہ دار آرمی اور پولیس کو سمجھتا تھا، اور قسم کھائی تھی کہ میں جتنے پولیس والے جہاں جیسے ملیں گے میں ان کو ماروں گا۔ جبکہ انہوں نے خود پہل کی تھی، جی جبکہ آرمی کی گاڑی پر انہوں نے خود پہل کی تھی، آپ بھی وہاں موجود تھے؟ جی ٹھیک ہے نا، آپ بھی اس میں شامل تھے جب میں آرمی؟ نہیں تھا، آپ نہیں تھے؟ میں دوسری بریگیڈ پہ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، میں سمجھ تو گیا۔ جس وقت انہوں نے جبکہ انہوں نے پہل بھی خود کی تھی اور دشمنی بھی خود کر رہے تھے۔ پہلے فائر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا لوگوں کے، فہیم کوانڈو نے پہلا فائر خود مارا تھا آرمی نے جوابی فائر تو کریں جس گے، کے ری کاؤنٹر پہ آرمی نے فائرنگ کی تھی تو مدمن مارا گیا تھا اس کا بھائی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سال 1994 کی دسمبر تھی، کیفے پیالہ ایک ہے، بڑا مشہور ہوٹل ہے پیپلز کالونی کے بالکل سامنے کیفے پیالہ ہوٹل پڑتا ہے۔ رات کو فہیم کوانڈو نے سب کو بلایا کہ آج کوئی بڑا حملہ کرنا ہے۔ پولیس والوں کو یہیں پہ گھیرتے ہیں، تو کچی آبادی پڑتی ہے اور پیچھے ایک نالا پڑتا ہے کیفے پیالہ میں جس سے بھاگنے کا راستہ بنتا ہے۔ تو وہاں پر لوگ سب جمع ہوئے، کیفے پیالہ کے بالکل سامنے ایک مدرسہ ہے، مسجد اور مدرسہ، اس کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک گلبر کی موبائل جا رہی تھی، اس کے اوپر فائرنگ کر دی، جس سے کوئی ایک پولیس والا جو تھا جو گاڑی پہ اکیلے ہی جا رہا تھا، وہ کوئی اے ایس آئی تھا یا کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل تھا،
मुझे भी याद नहीं है क्योंकि इस बात को काफ़ी वाक़या टाइम हो गया। वो एक हलाक हुआ था, हम लोग वहाँ पे खड़े रहे तो फिर रेंजर्स की बहुत सारी मोबाइलें आ गई थी। वहाँ पे रेंजर्स वालों से मुकाबला हुआ तो एक वो पुलिस वाला मारा था, उसके बाद फिर हम लोग सब वहाँ से पीछे से पीपल्स गार्डन चुरंगी से निकल के भागे और एस ब्लॉक में आके उन्होंने बना ली थी। मुकाबले में कितनी हलाकतें हुई थी? हमारा एमके में कोई लड़का नहीं मरा था और अखबार के अंदर जो पता चला था कि वो एक जो है पुलिस वाला जो है वो जी, वो शहीद हो गया था। शहीद हुआ था जी। ये वहाँ क्या क्या फिर पहला भी क्यों इस तरह वो किया आपने? कि फिर पहला भी ऐसा ये जो आपने ये किया है, एम्बुश किया या वहाँ हमला किया, क्या पुलिस ने पहले फायर किया था या आप लोगों ने किया? ये फहीम कमांडो ने बाकायदा प्री प्लान सबको बुलाया था वहाँ पे हमला करने के लिए और पुलिस ने आपको फहीम कमांडो ने कुछ तो बताया होगा ना कि भी ये क्यों? फहीम कमांडो का इतना रोक था हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जो है वो उसकी किसी बात पे ना नहीं करते थे कि बस जो बोल दिया वो करना है, उसके साथ करना है। लेकिन आप ये तो समझोगे नहीं क्यों कर रहा है, ये किसके कहने पे कर रहा है? फहीम कमांडो पहला लड़का था जो सबसे पहले दहशत जो फैला रहे थे उनके अंदर फहीम कमांडो पहला लड़का था जिसका लंदन से रब्ता हुआ था। लंदन से मुराद है लंदन के भी लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उसको आप अल्ताफ से समझे कि बस हम मुंह से निकल जाते हैं लंदन की। हमारी आदत अपने आपस में जब लोग लड़के बैठते थे तो लंदन बोलते थे, लंदन से मुराद हमारी अल्ताफ हुसैन या उसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी नदीम नुसरत होता है। अगर मैं कहीं लंदन इस्तेमाल करता हूँ तो आप उसको लंदन लफ्ज़ का अल्ताफ हुसैन बोले, हमारा कोड नेम है ये। क्या नाम बताया आपने दूसरा अल्ताफ हुसैन के अलावा? ये अल्ताफ हुसैन का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है नदीम नुसरत। अच्छा, वो क्या करते हैं? ये कहने को तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है कि पॉलिटिकल एडवाइस वगैरह दे, लेकिन जितना भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और जो टारगेट किलिंग वगैरह के जो नाम आते हैं, अगर अल्ताफ हुसैन खुद नहीं देता है, बाद दफा वो खुद देता है अपने जो बड़े करने वाले लोगों को बारे में खुद देता था, नहीं तो दूसरी जगह नदीम नुसरत देता है। और जिस वक्त नदीम नुसरत हिदायत देता है तो वो कॉन्फ्रेंस फोन पर फोन करता है कि एक लाइन पर अल्ताफ हुसैन होता है और एक लाइन पर नदीम नुसरत होता है। क्या आया कि अल्ताफ हुसैन नहीं देखता, अल्ताफ हुसैन के साथी में एतमाद नहीं है क्यों हर काम को खुद देखता है कि आया मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ ये सामने वाले को सही पहुंचा रहा है या नहीं। तो फोन वगैरह पे आवाज़ रिकॉर्ड होने के डर से कराची के अंदर अक्सर अल्ताफ हुसैन खुद रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में नहीं करवाता मैसेज, तो दूसरे फोन में खुद होता है, बोलता है कि मैसेज दो, तो मैसेज आता है जो किसको मारना है, कहाँ मारना है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऐसे कि जैसे एक फ़ोन पर जो है वो एक लाइन पे दो फ़ोन होते हैं, एक अल्ताफ हुसैन सुन रहा है और एक पर नदीम नुसरत जो है वो दे रहा है। एक ही लाइन, एक फ़ोन पे एक लाइन पे दो फ़ोन होते हैं। अच्छा, चलें इसके बाद के अंदर CIA के एक DSP थे हकीमुल्लाह खान तनोली, तो डॉक्टर इरफान हमारा एक सेक्टर मेंबर था। MKM के एक मरकज़ी रहनुमा इबादुर रहमान का भाई डॉक्टर इबादुर रहमान, इसमें बकाई इंस्टीट्यूट और बकाई मेडिकल कॉलेज से ये MBBS कर रहा था। तो सलीम बलोच के साथ वो आया और उसने बोला कि ऐसे ऐसे DSP है CIA के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हम लोगों को जो बताया उन्होंने यकीन किया कि हाँ सही कह रहे हैं। और तो कहने लगे हमने उसका घर वगैरह निकाल लिया, उसको मारना है गुलशन में। उन्होंने टाइम बताया कि सुबह 9:30 से 10 बजे के दरमियान जो है ये निकलता है अपने घर के लिए। तो उनके कहने पे उन्होंने हमें घर दिखाया, मैं, सलीम बलोच और सलमान हैदर और यूसुफ रिजवान और रिजवान कमांडो जो कमांडो के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अच्छा, एक मिनट, उसके घर का आप लोकेशन बता दें कहाँ है? ये डिस्को बेकरी है जी। ये डिस्को बेकरी से जो रोड ऊपर की तरफ जा रही है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, तो बीच में उनका मकान पड़ता है। कैसा मकान है? अब इस बात को 4 साल हो गए, मकान की लोकेशन जरा पूरा मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन बेहतरीन बेंगलो है या बेंगलोर टाइप का मकान है। 400 गज की, मेरा जो ज्यादा मुझे याद है कि 400 गज का मकान था। 400 गज के उसका बड़ा मकान है? जी। छोटा है या बड़ा है? और टाइल्स इसकी दीवारों पर टाइल्स लगे हुए, बड़ा मकान है। अच्छा, फिर आगे बढ़े, क्या हुआ? तो फिर इफ़ात जो है वो चूंकि हम लोग तो नहीं पहचानते थे हकीमुल्लाह खान तनोली को, तो उसके घर के सामने फादुर रहमान खुद खड़ा हुआ थोड़ा सा आगे और उसने इशारा दिया कि जब अपना सर खुजाओ और शर्ट निकालो तो समझ लो कि आप लोग तैयार हो जाओ। तो फादुर रहमान खुद खड़ा हुआ था। आगे जब उसकी गाड़ी आई तो इसने शर्ट निकाली, उन्होंने इशारा देखा, शर्ट निकाली या शर्ट उतारी? शर्ट यूं करके बाहर निकाली, पेट से बाहर निकाली कि जैसे इशारा दिया कि टारगेट तुम्हारा आ गया, शुरू हो जाओ। फिर उसकी गाड़ी निकली, जैसे ही वो यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंची है मेन रोड पर, तो वहाँ पे उन्होंने कोने से कुछ लगा के फायरिंग की थी, जिसमें मैं, सलमान हैदर, सलीम बलोच और यूसुफ रिजवान शामिल थे।
और हकीमुल्लाह खान तनों ने खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मोबाइल थी वाइट कलर की, और वो ड्राइविंग सीट पे ही एक्सपायर हो गई। अच्छा, किस असला किसके पास था? असला चारों के पास था, चारों के पास एक एक कलाशनकोव थी जी जी। जिससे उन्होंने फायर मारे थे। ये कलाशनकोव कहाँ से लाए थे? ये कलाशनकोव है, वही कलाशनकोव है जो 9-0 से सलीम बलोच ने ली थी, और ये सलीम बलोच हम लोग हैंड ओवर करता था सबके। 9-0 पे जो लंदन से फंड आता है खासतौर पर दहशतगर्दों के लिए, पैसा आता है कि आप इनका हथियार देख के मुख्तलिफ सेक्टरों में मुख्तलिफ लड़कों को बांटें जिनसे वो दहशतगर्द आने कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के अपने मुकम्मल कर सकें। 9-0 पे सब चीज़ों को देखता था। उस ज़माने में अनीस फैम खानी हैदराबाद का दोनों ऑर्गेनाइजर था, लेकिन वो कराची के अंदर रहता था, और अनीस अहमद एडवोकेट ये मीरपुर खास सखर का था, लेकिन ये भी कराची के अंदर सब चीज़ों को देख रहा था। जुल्फ़कार हैदर ये पहले सेक्टर इंचार्ज रहा है शाह फैसल कॉलोनी का, और MPA है। ये तीनों जो हैं सबसे बड़े थे तो कराची के अंदर इन चीज़ों को देखते थे, और कराची से बाहर जो लंदन के अंदर नदीम नुसरत, डॉक्टर अनवर और सफदर अली बाकरी, जिसको हम लोग डॉक्टर अली कहते हैं, ये लोग इन सब मामलों को देख रहे थे। कराची में ये लोग डील कर रहे थे, और इन लोगों को जो फर्दर हिदायतें मिलती थी, इन हिदायतों जो डायरेक्ट लोगों को मिली, इसके अलावा जो फर्दर हिदायतें थी वो इन लोगों के जरिए कराची के लोगों को मिलती थी, और इन लोगों को लंदन देता था यार। लंदन से मुराद अल्ताफ हुसैन और पॉलिटिकल सेक्रेटरी। क्या किसी वारदात में ये लोग शामिल रहे आपके लोगों के साथ, या इनके कहने में सब कुछ होता है? ये लोग हमारे साथ वारदातों में शामिल नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोग तो भाई मरकजी रहनुमा है, बड़े मतलब जो अपने आपको बहुत बड़ा फिरौन हुक्म देना जानते हैं ये लोग, और इस्तेमाल करना जानते हैं लड़कों को। ये लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डालते, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, पकड़े भी जाए तो इनके ऊपर केस ना बने, ये अपने आप को इस तरह चलाते हैं। हालांकि सब करता धरता सब लोगों को केसेस देने वाले। अगर हम कत्ल कर रहे हैं तो हमारा गुनाह भी उतना ही है जितना हमसे कोई कत्ल करवा रहा है। गोया ये कत्ल वो करवाते रहे सारे हम लोगों को नाम उन्हीं लोगों के थ्रू मिलते रहे। नहीं, इसके पीछे मोहर्रिक क्या था, कत्ल क्यों करवा रहे? मोहर्रिक जो था वो ये था कि कराची के अंदर इतना वायलेंस फैला दिया जाए कि बिजनेसमैन जो बाहर से आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कराची एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी मंडी भी कराया है कि लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाने पे इंडस्ट्रीज से, अपनी बड़ी पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट दुनिया के अंदर कराची की पोर्ट ट्रस्ट है। इतनी अच्छी नेचुरल पोर्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया भर का शिप यहाँ आके लगता है। एक बहुत बड़ी रेवेन्यू जो है, एक एवरेज के मुताबिक पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जो है वो कराची देता है, टैक्स कराची अदा करता है, और उस 70% में बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ KPT अदा करती है। टैक्स का जो रेवेन्यू जो आता है KPT से आता है। तो बहुत अमेरिकन फर्में लॉन्च हो रही थी इधर, जैपनीज फर्में जो मोटर गाड़ी वगैरह की, जिस तरह इनोपाक की है, टोयोटा की लगी हुई है। इन लोगों का ये इरादा था कि यहाँ से तमाम इतना ज़्यादा वायरस फैला दिया कि गैर मुल्की जितना भी हम सरमाया आ रहा है, या अपनी जो फैक्ट्रियाँ या अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वो सब घबरा के पाकिस्तान से भाग जाएँ, और मुआशी तौर पर इकोनॉमिकली जो है पाकिस्तान कमज़ोर हो, टूटे। बार बार स्ट्राइकिंग करने का मकसद भी होता था MKM का कि एक दिन के अंदर कई कई अरब रुपए का गवर्नमेंट नुकसान होता है MKM की हड़ताल से। तो कंटिन्यूसली हर हफ्ता इन्होंने बीच में फिर एक इस तरह कर दिया कि हफ्ते में 2 ही हड़ताल और एक हड़ताल इन्होंने कंटिन्यूसली कर दी थी, जो कई हफ्तों तक चली हैं, कि हल्के 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 इकोनॉमिकली तो अभी कराची को तबाह करना चाह रहे थे कि खुद ब खुद जो है कराची पाकिस्तान इतना गरीब हो जाए या इतना टूट जाए कि दूसरों का मोहताज हो जाए, बिल्कुल अपने पाँव पे हम कभी खड़े ना हो सकें, और जो चाहे इतना गरीब कर दो पाकिस्तान को कि जो चाहे आगे में कब्जा कर ले और मोटर डिफेंस करने के काबिल ना। नहीं, आप तो बाशऊर आदमी हो, भी काम किया हुआ है, तो ऐसा क्यों होता रहा? ये किसके कहने पे ये लोग करते रहे? फिर क्या मफादात थे इसके पीछे? ये फिक्री नशिस्तें वगैरह होती थी जो अल्ताफ हुसैन खुद लेता था 90s तक, जब तक था यहाँ पर। तो उस वक्त में और फिक्री नशिस्तों में हम लोग नहीं जा सकते थे, हम लोग छोड़े थे। उस वक्त जो हल्फ याफ्ता थे 90s में वो जा सकते थे। तो अल्ताफ हुसैन ने तमाम ब्रीफिंग खुद दी है, शुरू से देता आ रहा है कि आर्मी के खिलाफ लड़वाना और मुल्क से दुश्मनी, मुल्क से नफरत, पाकिस्तान में बसने वाली बाकी 4 कौमों से नफरत। हर पहले प्री प्लान जो महाजिरों को, जो महाजिर कौम है, प्री प्लान जो है इसका झगड़ा पठानों के साथ करवाया गया, जबकि पठानों से इससे पहले 47 लेकर अब तक के पठानों का महाजिरों से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मिल बांट के रह रहे थे। फिर जब इनसे नहीं हुआ तो फिर उन्होंने लिसानी फसाद सिंधियों से करवाए, पंजाबियों से झगड़ा करवाया जमान की क्रैश पे, कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ऐसा कर दिया कि चारों कौमों से ना, जो पाकिस्तान होने के बाद जो लोग यहाँ पर आके आबाद हुए, हिंदुस्तान जब बना तो मुसलमान उस पर बना था, जो वहाँ के मुसलमान यहाँ पे आके आबाद हुए,
उन लोगों को बाकी 4 कौमों से बिल्कुल अलग तस्वुर करवा दिया कि आप बिल्कुल इन 4 से अलग, और ये बाकी 4 कौमें जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत हमें सलूक कर रही है। ये हमारे ध्यान में बात बैठा दी गई थी कि हम नफरत करने लगे बाकी 4 कौमों से। तो हम ये चाहते थे कि हम एक कौम, अल्ताफ खान की लिखनी ये थी कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक कौम अपने एक अलग हिस्से में रहें, जहाँ पे हम ही लोग हों, हमारी अपनी ज़मीन हो, हमारी अपनी आर्मी हो, हमारी अपनी पुलिस हो, हमारा अपना गवर्नर हो, अपना वज़ीर आज़म हो, अपना सदर हो। जो साफ बात यह है कि वो चाहते थे कि हम अपनी अलग स्टेट लेके आज़ाद हो जाए। इससे आगे क्या हुआ, इसके आगे बढ़ा? फिर 1995 का रमज़ान ईद आई। ईद के फौरन बाद मैं, यूसुफ रिजवान, सलमान हैदर और सलीम बलोच जो हिदायत भी खुद देता था और आज इस गेम में हमारे साथ भी था, हम लोगों ने नाज़ाबाद नंबर 2 पे मुल्ला रहमत को हलाक किया था। मुल्ला रहमत कौन है? मुल्ला रहमत एक हकीकी का आदमी था, लड़का था हकीकी का, और इसने वहां पर एम के माले जो लोग थे, जो हमारे पास जो ब्रीफिंग आई कि इसको मारो, इससे एम के मालों का रहना मुश्किल किया हुआ है और बड़ा खतरनाक लगा, इसको मार दो तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। तो हम लोगों ने वहां पे गाड़ी के पीछे चेस करके उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया था। ये किसके कहने पे किया था? ये सलीम बलूच को 9-0 की हिदायत मिली थी। 9-0 को जाहिर सी बात है लंदन 9-0 लंदन ब्रीफिंग भेजता है, फिर लंदन से वापस आता है अप्रूवल के, इसको मार दो। फिर सलीम बलूच ये अप्रूवल लेकर आया था कि इसको मारना है, तो जाके फिर हम लोगों ने वापस को मारा था। अच्छा, उसके बाद फिर इसके बाद फिर बकरीद आई थी, तो हम लोग खाने जमा कर रहे थे। ये मैंने बताया कि खाने जमा कर रहे थे। फिर वो हुआ, फिर इसके बाद ये है कि कार्रवाइयों में जितनी भी थी सब बता रहा हूँ जो जो याद आती जा रही है। तो सीक्वेंस आगे पीछे के बाद में 97 का केस है, तो बाद में 95 का है, लेकिन केस सारे हमारे हाथ हो गए। इसी तरह 97 के अंदर मैं असद और राशिद अख्तर उर्फ शेख नजरिया का लड़का था, लाहौर के अंदर बैंक रॉबरी के अंदर ये पुलिस काउंटर में हलाक हो गया था, बैंक रॉबरी करते हुए एट द पॉइंट। 98 में मरा है राशिद अख्तर। लंदन से नजीब नुसरत का बस फोन आया, अल्ताफ खान भी लाइन पर था। अल्ताफ खान ने बोला कि नजीब नुसरत से बात करो, ये कुछ कह रहे हैं, ये काम करो। नजीब नुसरत से फिर बात शुरू हुई, तो मुझसे उन्होंने बोला कि 2 नाम दिए उन्होंने मुझे। एक नाम एजाज शफी जो कि मुस्लिम लीग के MNA हैं, और एक नाम उन्होंने दिया मलिक शाहिद आबिद। मैंने कहा मलिक शाहिद आबिद बनने के भी नाम इतना था, ये कौन साहब है? तो कहते हैं ये KC के MD होते हैं और रहते बिजली के मसले मसाला वो हल कर लो। फोन पे खुल के नहीं बोलते, इस तरह कोर्ट चलते हैं जो लोग समझ जाते हैं क्या है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने रैकी की थोड़ी सी ये पता चला कि इनका घर जो है वो डिफेंस में है। तो एक दिन सुबह हम लोग जो इनकी टाइमिंग नोट की 8:30 से 9 बजे के दरमियान निकलते हैं, तो मैं, राशिद अख्तर, असद और असद निकले। दोस्त फैज मार गल्ला गाड़ी थी हमारे पास, हम लोगों ने वहाँ पे जाके खड़ी की। इनके घर से 2 एंट्रेंस निकलती थी, जब उनकी गली खत्म हो रही थी घर से निकलने के बाद, तो वहाँ से गाड़ियाँ तो सीधी जाती है, लेफ्ट हैंड में मुड़ती है, हमने दोनों से गाड़ियाँ कवर की हुई थी। जब गाड़ी सामने आई तो मैंने और असद ने फायर मारे, तो ड्राइवर ने हम लोगों को देख लिया था कि मैं फ्लैश हम लोग फायर मारे, उसने गाड़ी लेफ्ट हैंड की साइड घुमाई है। तो दूसरी तरफ जहाँ से वो भाग रहे थे वहाँ पे अथर और राशिद अख्तर खड़े थे, गाड़ियों के बिल्कुल सामने। उन्होंने गाड़ी को फायर मारे, गोली लगी। एक तरफ से मैं और असद फायर कर रहे थे गाड़ी के ऊपर से, एक तरफ से अथर और राशिद अख्तर। गाड़ी वहाँ पे कचरा कुंडी है, उस पर आगे लगी, और राशिद अख्तर ने करीब जाके, ये लोग पहले जख्मी हालत में थे या मर चुके थे, गाड़ी भी हम लोग फायरिंग से उसने करीब जाके मजीद गोलियां मारी, गाड़ी में भागते हुए आए और हम लोग वापस आ गए। ये MD थे। अच्छा, जब हमने नजीब से पूछा था कि क्यों मरवा रहे हो आप? नहीं, आप पहले ये बताइए कि इसके घर की रेकी किसने की, ये घर का एड्रेस किसने बताया? राशिद अख्तर चूँकि लाइब्रेरी में रहता था और डिफेंस लिफ्टन में हम लोगों से बड़ी एज का था, डिफेंस लिफ्टन में से बहुत से लोग जाने वाले थे, तो वहाँ से इसने रुक के पूरा इसके टाइमिंग वाला राशिद अख्तर ने निकाली थी, ये उसके जिम्मे काम था। बताया गया था हम लोगों को कि उन्होंने फिर नदीम मुसरत मुझसे बोला कि आपको फर्दर हिदायत जो है यहाँ पे आपको जुल्फ़िकार हैदर दे देगा। जुल्फ़िकार हैदर से हमारी बात हुई, उसने बोला कि IMF का मेंबर है, जो कि बैंक का मेंबर रह चुका है बहुत बड़ा, इसकी बहुत अच्छी वहाँ पे रिसोर्सेज है और ये पाकिस्तान को लोन दिलवाने में कोई
बीच का किरदार अदा कर रहा है, इस तरह के कन्वेंस कर रहा है लोगों को पाकिस्तान को लोन दे दें। अगर आप उसको मार देते हो तो सब फिर लोन दिलाने वाला पाकिस्तान को ऐसा बंदा नहीं होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। इसका मारना बहुत जरूरी है। तो नदीम मुसद के कहने पे उन्होंने नदीम मुसद के कहने पे क्या, नदीम मुसद को अल्लाह ताला ने बोला था और इन लोगों के कहने पे उन्होंने इसको हलाक किया मलिक शाहिद। इसके लिए असला कौन सा इस्तेमाल किया? क्लाशन कोफे थी हम चारों के पास 4